Yesterday I started unit 4 curves on a surface. So for a curve, we have two curvature vectors, normal curvature vector and geodesic curvature vector. So any curvature vector k can be written as kg plus k. Whiteboard visible, students? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes. Visible. So Yes, here, sir. so we were talking about if you have a curve on the surface, suppose you have some surface like this, and on the surface some curve is there. So for a curve, you have tangent vector t, you have a normal vector. Suppose at a point, this is normal vector t, and this is capital N is the normal of the surface. At a point P, this is normal to the surface. So we considered a vector u. A vector u I considered. So u was a vector which is given by n cross t. It was a vector, and this vector, because u is perpendicular to n and u is perpendicular to t, and n is also perpendicular to t. So this k, the curvature vector is given by kappa n. So n is perpendicular to t, so it will be lying in the plane u and n, है ना? u and n के प्लेन में लाई करेगा क्योंकि t के परपेंडिकुलर है और n और u भी t के परपेंडिकुलर. So we got that this curvature vector k can be written as kg plus kg plus kn, like this. So if any k can be written as, this is your kn. So kn is along the vector n, and this kg is along the vector u. Any curvature vector can be written as kg plus kn, where kg vector is what? This is kgu because it is along u. U is a vector, kg now here magnitude, and this kn, it is kn into n. So the resolved part of k along n is called the normal curvature vector, and the resolved part of k along u is called the geodesic curvature vector kg. So this is your geodesic curvature vector, and this kn is called normal curvature vector. Then we got expression by solving Gauss formula. The k की आपकी expression, the k was coming this by using Gauss formula. I j k dui over dus duj over dus d2 uk over ds2. It was a coefficient of rk plus bij dui over ds duj n. So it was the vector k by the Gauss formula. So by comparing this with this part is kg and this part is kn. Okay, the coefficient of rk, this is your kg part, this is your kn part. By comparing this किया था, तो इससे हमने kn की वैल्यू निकाली थी. kn was coming bij dui duj upon gij
डी यू आई डी यू जे, ये आपके के एन की वैल्यू हो जाएगी। एंड के जी विल बी गिवन बाय के जी यू वेक्टर के जी डॉट, इसे आप kg कर्व, ये आपका नॉर्मल कर्वेचर है ना, बिकॉज इट्स अ के वेक्टर नहीं, इट इज के एन, सो इट इज नॉर्मल कर्वेचर and this kg is geodesic curvature kg dot u. Then we will be showing one theorem we were solving. Theorem 1 here show that the value of the geodesic curvature is given by kg is equal to square root g determinant of du1 over ds du2 over ds and d2u1 over ds2 plus I j1 dui dui over ds duj over ds, and this was d2u2 over ds2, ये कितना था प्लस आई जे टू प्लस स्टॉपल सिंबल आई जे टू डी यू आई ओवर डी एस डी यू जे ओवर डी एस, ये थ्योरम लास्ट क्लास में कल कर रहे थे. So I want to find this kg. So kg was coming how much? kg dot u, है ना, ये फॉर्मूला है. और kg dot u means, so kg की वैल्यू, this is your kg. From this you can write d to u के पहले मैं सेकंड ऑर्डर टर्म लिख रहा हूँ, डेरिवेटिव प्लस आई जे के डी यू आई ओवर डी एस डी यू जे ओवर डी एस and rk dot u. Okay, now rk dot u, k is running from 1 to, so I will find what is for k is equal to 1 this and for k is equal to 2. But I am writing this, finding this. So what about r1 dot u? इसे क्या लिख सकते हैं r1? What is your u here? u कितना है? n cross t. n cross t है ना? Yes, u can write n cross t, और n cross t को I can by dot product, it's a triple product, so t can take outside, so I can write t cross r1 dot n, है ना, a dot b cross c can be written as this, c dot c cross a dot b, and t cross r1, and r1 was dui over ds and dui, t कैसे निकाला देखो, t की वैल्यू यू नो, t is r dash, है ना, एंड r dash की वैल्यू क्या थी, ri dui over ds. This is your tr dash, s is your natural parameter, so dui over ds will come outside and t will become, this is a vector, so you have ri cross r1 dot n. अब जब आप i को 1 रखेंगे, it will become 0, r1 cross r1 is 0, so you have du1 नहीं, du2 आएगा, फिर du2 over ds r2 cross r1 dot n, है ना, since r1 cross r1 is 0. Now I will write the value of n. So this will be how much? N is how much? You know vector n is r1 cross r2 upon mod of r1 cross r2, जिसको हम root g लिख सकते हैं, है ना, root g. So n will be how much? This. Yeah. So r1 cross r2 है,
तो अब मुझे सेम वेक्टर, ये भी वेक्टर क्वांटिटी, ये भी, तो आई कैन राइट माइनस साइन, तो दिस विल बी व्हाट, du2/ds, और n को अगर मैं माइनस साइन के साथ लिख दूं तो माइनस r1 क्रॉस r2 एंड r1 क्रॉस माइक म्यूट करो भाई अपना। यजान, Azan, turn off your mic. इसका यजान का माइक हमेशा ऑन क्यों हो जाता है? पता नहीं सर। तो दिस विल बी, है ना, इसको हमने क्या करा, n की वैल्यू रख दी है और r2 क्रॉस r1 को मैंने क्रॉस प्रोडक्ट चेंज किया तो माइनस साइन आ गया। अब ये सेम वेक्टर्स है तो इट्स अ डॉट प्रोडक्ट, है ना, इट विल बिकम 1, so you have माइनस, नहीं n की वैल्यू क्या हो गई, r1 क्रॉस r2 डॉट n है यहाँ पे, ओके, so you have माइनस dt, n की वैल्यू क्या आनी चाहिए भाई, रूट जी ऊपर न्यूमरेटर में आना चाहिए यहाँ पे, एक मिनट, n आपका है ये, so r2 क्रॉस r1 du2/ds, और इसकी वैल्यू जी आ जाएगी, अच्छा ठीक है ना, ये वैल्यू क्या आएगी, स्क्वायर, दिस विल बी व्हाट, mod of r1 r2 square, so you have minus du2/ds g upon root g, है ना, याद है ये, mod of r1 क्रॉस r2 square, it is how much, g, ये वही तो डॉट प्रोडक्ट जब आप लेंगे तो यही तो आएगा, mod of r1 mod a डॉट mod b cos थीटा, तो cos 0 तो 1 हो गया, mod a mod b कितना बन जाएगा, स्क्वायर, so you have root g is cancelled out, so you have minus root g du2/ds, it is the value of r1 dot u, is it clear, कैसे है ये, बोलिए भाई। Similarly you can write r2 dot u, r2 dot u में क्या हो जाएगा, माइनस उसमें आएगा रूट जी du1/ds, तो जब r2 डॉट u लेंगे वहां पे माइनस साइन नहीं आएगा, so you can write similarly r2 dot u is equal to square root g du1/ds, so hence kg is equal to, वापस वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पर, kg की ये जो लिखी थी, है ना, kg क्या था, दिस वाज योर kg, तो यहाँ पर k पहले 1 रखूंगा मैं, फिर 2, तो पहले 1 रखा k पे, तो इट विल बी d2u1/ds2 d2u1/ds2 प्लस आई जे, k था, k की प्लेस पे 1 रखा हमने, dui/ds duj/ds, एंड फर्स्ट क्या आएगा, r1 डॉट u, r1 डॉट u इज दिस माइनस अंडर रूट जी du2/ds, नेक्स्ट टर्म प्लस, अब k इज इक्वल टू 2 लेंगे यहाँ पे, ये 1 लिया है अभी, अब k इज इक्वल टू 2 रखा, तो d2u1/ds2 प्लस आई जे, यहाँ 2 हो जाएगा, dui/ds duj/ds, r2 dot u is this under root square root g du1/ds, okay, and if you see here it is just the determinant, इसको अगर मैं determinant फॉर्म में लिखूं तो root g you can take outside, determinant of this into this, और ये माइनस साइन है ना, तो फर्स्ट टर्म इज आई कैन राइट du1/ds du2/ds
and this is d2u1 over ds2, ये टर्म लिख देंगे क्योंकि इसका इंटू इसमें हुआ है ना, तो पहले 1 का टर्म आएगा ij1 and this will be d2u2. ठीक है, बोलिए भाई, इज क्लियर स्टूडेंट्स? 44 स्टूडेंट्स ने बताइए भाई। यस सर। ठीक है, तो ये आपका एक केजी की फॉर्म थी डिटरमिनेंट। ये जो क्वेश्चन मैंने निकाली है इसको मैं अभी स्टार दे दे रहा हूँ, बेसिक क्वेश्चन। इसका मुझे आई विल बी यूजिंग इन सम अदर प्रॉब्लम्स। ये जो हमने निकाली थी वैल्यूज r1.u r2.u की, तो सिंपल यहाँ पे ऑल द टाइम आई एम डूइंग जस्ट सम कैलकुलेशन। previous formulas I am using, what is t, what is r1 cross r2 n, और इसका यूज करके हमें वैल्यूज निकाली है बस। तो यू शुड नो ऑल दीज formulas, the values of the t and whatever I am using, and how to arrange the terms. One corollary is there. Corollary. Corollary is what? Some small results based on the theorem. Corollary says that kg is equal to n r dash r triple dash r double dash, है ना? ये ब्रैकेट क्या आपका, ये वेक्टर प्रोडक्ट kg can be written as n r dash r double dash. It's a corollary. इसका एक लाइन का प्रूफ है। kg आपका kg डॉट u है ना? द kg geodesic vector I can write kg dot u, और kg dot u means I can say kg dot u is k dot u, और k is r double dash। kg dot u k dot u हो गया, है ना? देखो kg dot u जब आप u करेंगे डॉट, तो n डॉट u तो आपका 0 हो जाएगा बिकॉज u इसके परपेंडिकुलर है, ये आ जाएगा k डॉट u। k डॉट u I can write, है ना? तो kg dot u is how much? k dot u from this formula, n dot u is 0, तो kg dot u I can write k dot u, एंड k की वैल्यू आपके पास क्या थी? r डबल डैश, क्योंकि कर्वेचर है, k is कप्पा n and u is n cross t, so you have r double dot n cross t, or you can say r double dash n cross t is r dash, है ना? This I can write, I can take n outside and I can say r dash cross r double dash। ये क्या है आपका? n r dash r double dash। ठीक है, ये कॉलरी थी based on this. Next problem we have based on this. What is the problem? Corollary 2 है in fact। जो थ्योरम हमने मेन प्रूफ करी है थ्योरम 1, उसके ऊपर सम कॉलरीज हैं। Corollary 2, it was corollary 1, corollary 1, then we have corollary 2, corollary 2, the geodesic curvature, the geodesic curvature of parametric curves are
r k kg1 is equal to 112 square root g upon g11 under root g11 and kg2 is equal to minus 2 to 1 square root g upon g22 square root g22. Geodesic curvature of parametric curves ये होंगे kg1 kg2 मतलब kg1 मीन्स पहले तो बताओ व्हाट इज पैरामीट्रिक कर्व, किसी को याद है पैरामीट्रिक कर्व्स क्या थे? सर अगर u1 u2 दो पैरामीटर हैं, u1 को कांस्टेंट रख के जो कर्व बनेगा u2 हम्म, या फिर u2 को कांस्टेंट रख के u1, वो कर्व पैरामेट्रिक कर्व कहलाएंगे। ठीक ठीक बात। कौन बोल रही है? आरिश खान। यस सर। हाँ, तो पैरामीट्रिक कर्व जब होंगे तो यू हैव टू कर्व, तो फॉर u1 कर्व आई विल बी हैविंग u2 कांस्टेंट, है ना? ये होता है, यू हैव टू कर्व, so like if you have a surface like this, so surface को I can say like one curve is there, u1 u2 होता है, suppose it is u1 it is u2, है ना? तो u1 कर्व के लिए u2 is constant, so u2 constant means what? du2 over ds is how much? 0, है ना? and also ds2 अगर मैं फर्स्ट फंडामेंटल फॉर्म लूं तो g11 du1 स्क्वायर प्लस twice g12 du1 du2 प्लस g22 du2 होल स्क्वायर। तो यहाँ पर आपके पास du2 0 है, तो यू हैव ओनली du2 0 du2 0, तो ds2 विल बी व्हाट? g11 du1 स्क्वायर, ये ds2 की वैल्यू हो जाएगी। तो दिस इंप्लाइज दैट du1 over ds is how much? 1 upon अंडर रूट g11, है ना? ये आपकी वैल्यू आएगी ना ds2 की, तो du इसे इधर ले जाए 1 अपॉन g11, स्क्वायर है दोनों का, स्क्वायर हटा दिया रूट g1, तो यू गॉट du1 ओवर ds मिल गया आपको और du2 ओवर ds, है ना? ये क्यों लिया? क्योंकि हमें kg निकालना है फॉर u1 कर्व के लिए, तो kg की वैल्यू हमने थ्योरम 1 में निकाली थी, ये थी जो स्टार लिखा था, इट वाज योर kg, है ना? यहाँ वैल्यू पुट करेंगे, तो यहाँ पर आप देखें स्टार du2 ओवर ds का टर्म 0 हो जाएगा एक, तो फॉर u1 कर्व, तो फर्स्ट टर्म इज 0, हियर ओनली यू हैव सेकंड कर्व। सेकंड में क्या आ रहा है आपके पास? d2 u2 ओवर ds2 की वैल्यू हमने निकाली है ना, देखिए इधर, सो पुटिंग इन स्टार in theorem 1, we get, so I am taking kg, मैं इसे 1 लिख दे रहा हूँ क्योंकि u1 कर्व के लिए ले रहे हैं, तो kg1 will be what? देखिए, so this first term is 0 because du2 over ds is 0, so this whole thing is 0, so you got 0 plus d2 u2 over ds2 and bracket, so d2 u2 over ds2, तो du2 over ds 0 है तो सेकंड डेरिवेटिव भी 0 हो गया, है ना? when du2 over ds is 0, d2u over ds2 is 0, so this is 0 plus, है ना, ये 0, अब ये कितना I j 2 dui over ds duj over ds, I j 2 dui over ds duj over ds, and what is outside? अंडर रूट g du1 over ds, du1 over ds की वैल्यू हमने निकाली है, तो अंडर रूट g and du1 over ds is 1 upon
G11. Now I will find a value, so I will run now ij12. So here you can see, जब भी यहाँ पे 2 आएगा du2 over ds, so du2 ds is always 0. du2 over ds is always 0. So what the terms only will be coming? यहाँ ij की क्या वैल्यू आ जाएगी? नॉन जीरो. बताइए. जब I will put the value of ij, which value will be coming non-zero here? बताइए. du2 over ds is always 0. तुम्हें अनीस साहब बताइए आप. नहीं पता या है ही नहीं? When I will start putting ij1 1 1 1 है 1 1 1 के लिए. सर 1 1 1 हाँ, क्योंकि अगर आप 1 2 लेंगे तो एक 2 हो जाएगा 0, 2 1 लेंगे तो जैसे 2 हुआ ये 0. सिर्फ 1 1 के लिए it will be non zero. So this I can write. So this will be ये 0 था already. So this will be what? स्क्वायर. इस टर्म को पहले लिख देना, स्क्वायर रूट जी ओवर G11 एंड 1 1 2 du1 ओवर ds होल स्क्वायर. ठीक है, सिर्फ 1 1 के लिए नॉन जीरो आएगा तो ये होल स्क्वायर बन जाएगा. दिस इज योर kg1. और du1 ओवर ds की वैल्यू हमने निकाली है 1/√g1. इसका होल स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर रूट विल रिमूव, so you will be getting, so kg1 will be how much? So you have root g over G11 square root g over square root G11 and 112 du1 over ds whole square is 1/G1 1/G11. यही हमें शो करना था. देखिए kg1 112 and root g upon, ही तो आ गया ये, which is 112 under root g over G11 square root G1. ठीक है, ऐसे ही kg2 आ जाएगा. सिमिलरली kg2 में for u2 कर्व u1 is constant, so du1 over ds is 0. When you will put in star, you will be getting kg2. Similarly, for u2 curve u1 is constant. This implies that du1 over ds is equal to 0. है ना, यहाँ पे du1 आ जाएगा. इसे सॉल्व करेंगे, putting in star and solving. स्टार ऑफ थ्योरम 1, जो थ्योरम 1 की वैल्यू है, एंड सॉल्व. ठीक है भाई. देन वन मोर corollary, corollary 3. if the parametric curves are perpendicular, if the parametric curves are perpendicular, then अब क्या है, एक कंडीशन और लगा दी कि जो पैरामीट्रिक कर्व्स है आपके वो परपेंडिकुलर भी हैं आपस में. दे आर परपेंडिकुलर मींस दे आर मेकिंग a 90 degree angle. Their tangents making 90 degree angle. Then kg1 is equal to minus 1/√G22 del of log of √G11 over del u2. मतलब डेरिवेटिव ऑफ दिस ना, ये इसका, एंड kg2 is equal to 1/√G11 del of log of √G22 over del of u1.
ठीक है, ये एक कंडीशन और है, हल्की सी कैलकुलेशन है, बस ये चीज निकल कर आ जाएगी। बताओ अब, नाउ व्हाट मोर इंफॉर्मेशन यू हैव, इफ टू पैरामीट्रिक कर्व्स आर परपेंडिकुलर देन व्हाट? G1 to 0. G1 to हाँ ठीक है, G12 इज 0 है ना, हमें ये गिवन है, ये पता है आपको, शायद मैंने क्वेश्चन ही पूछा था आपका इस क्विज में इसके ऊपर, या G12 0, या आपने जब प्रिपेयर किया होगा तो आपने देख रिवाइज करा होगा इसे। तो whenever curves are perpendicular G12 is 0। अब यहाँ पैरामीट्रिक कर्व्स है तो यहाँ G12 0 भी है, और du2 कांस्टेंट, du2 over ds 0 एक बार, और एक बार du1 over ds है ना। तो दिस एक्स्ट्रा कंडीशन वी हैव, दिस इज गिवन। तो जब ये 0 होता है तो हमें पता है कि G आई कैन राइट G11 G22 है ना, बिकॉज G इज व्हाट, G11 G22 माइनस G12 स्क्वायर, तो G की वैल्यू ये हो जाएगी है ना, क्योंकि हमें प्रूफ में दिख रहा है कि प्रूफ में आई नीड सब G11 G22, तो G की वैल्यू हमने निकाल ली, ठीक। एंड ऑल्सो फॉर U1 कर्व, क्योंकि दे आर द पैरामीट्रिक कर्व, तो आई हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड KG1, अभी KG1 हमने निकाला था, KG1 की वैल्यू क्या आई थी, ये आई थी √G, KG1 इज 112 √G अपॉन G11 G11, ये आया था। तो यहाँ पर हमें क्या करना है अब, क्योंकि मुझे यहाँ पर प्रूफ में क्रिस्टोफल सिंबल नहीं दिख रहा, तो इसका मतलब क्या हुआ, आई हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ क्रिस्टोफल सिंबल, इसकी वैल्यू निकालनी होगी है ना, क्योंकि G तो एडजस्ट हो जाएगा, G इज G11 G22, यहाँ आप G11 G22 लिखेंगे तो ये आपके पास क्या हो जाएगा 112, G की वैल्यू रखेंगे आप तो रूट कैंसिल आउट, यू विल बी हैविंग G22 अपॉन G11 है ना, ये वैल्यू जब रखोगे हाँ स्क्वायर रूट से, एक कैंसिल हो जाएगा। तो 112 की वैल्यू निकालते हैं, 112, बिकॉज इट्स अ क्रिस्टोफल सिंबल ऑफ सेकंड काइंड, इसका फॉर्मूला क्या था, G2L एंड 11L है ना, ये फर्स्ट काइंड होता है। तो अब यहाँ पर क्या होगा, L रन करेगा, तो यू हैव G21 111 प्लस G22 112, और ये कितना है, G21 इज हाउ मच, ये तो 0 है ना, when G12 is 0 तो you have G12 is also 0, सुपरस्क्रिप्ट भी 0 हो जाती है, ओके। तो ये तो 0 है आपका, तो you have only this thing, only nothing but you have G22 112, सिर्फ इसकी वैल्यू निकाल दी है, इज इट क्लियर। अब देखिए, तो दिस विल बी व्हाट, नाउ G22, so this I can write 1 upon G22 है ना, G22 की वैल्यू बिकॉज G12 0 है तो 1 अपॉन G22, ये रिलेशन हो जाती है सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट में, तो ये सॉरी यहाँ नीचे आएगा G22, 1 अपॉन G22 इज 1 अपॉन G22 व्हेन G12 0, और 112 की वैल्यू क्या थी, 1 अपॉन 2, किसी को याद है, डेल U क्या आएगा यहाँ पे 1, डेल U1 माइनस डेल U2, ये बताया था मैंने पहले, 1 1 माइनस 2, अभी डेल U1 है तो हियर विल बी व्हाट, डेल G12 ये वाले, देन डेल G इसे ऐड करा 1 2, और लास्ट में डेल G11, ये फॉर्मूला क्रिस्टोफल सिंबल ऑफ फर्स्ट काइंड का याद है किसी को, नहीं याद है। अब देखिए G12 इज 0, तो ये टर्म 0 हो गया, ये टर्म 0 हो गया, तो यू हैव ओनली डेल G11, so you have only minus 1/2 G22 डेल G11 ओवर डेल U2, सिर्फ ये टर्म बचेगा आपके पास, ओके। और इसको अब मैं क्या लिख सकता हूँ, ये आ गया, हाँ। सो व्हाट अबाउट KG1, हमें निकालना है यहाँ पर KG1 है ना, KG1 शो करना है, देखिए ये शो करना है, तो उठा के इसे वापस रखा हमने इसमें KG1, तो KG1 इज
112 की वैल्यू क्या आ गई, -1/2 G22 del G11 ओवर del U2 इंटू, ये कितना बचा था आपके पास, स्क्वायर रूट G22 ओवर G11, यही तो था। इसे हम क्या लिख सकते हैं, देखो स्क्वायर रूट 2 से ये स्क्वायर रूट 2 कैंसिल, तो यू हैव -1/2 स्क्वायर रूट G22 और 1 क्या है यहाँ पे G11 del G11 ओवर del U2। अब बताइए इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखो क्योंकि मुझे लॉग में लाना है ये आंसर, यहाँ लॉग ऑफ अंडर रूट G11, तो कैन आई, और अंडर रूट G22 साथ में सही बाहर, ठीक है, तो यू हैव -1 अंडर रूट G22 and this will become del of log of under root G11 upon del of U2। देखो क्योंकि 1/2 है, इसे हम अंदर ले गए लॉग स्क्वायर रूट, इसका जब आप करेंगे तो क्या निकल के आएगा, देखो लॉग का कितना होगा 1/1 अंडर रूट G11, और 1/रूट G1 को जब आप करेंगे तो वो 2 का ही आ रहा है, तो ये 2 इसके लॉग में आ गया, ये पूरा टर्म हमने अरेंज कर लिया इसके साथ, बोलिए। तो दिस इज योर KG1, ये जो टर्म था। सिमिलरली KG2,